देखियो ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਈ ਓਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਖਤਮ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਕੀ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਸ ਅਪੋਨ ਵੋਲੀਅਮ। ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਨਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਵਾ, ਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਨਾ ਨਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵੋਲੀਅਮ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ? 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਕਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ? ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ। ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ? ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਏ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਡੈਲਟਾ TF ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? KF ਇੰਟੂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਤਾ। ਡੈਲਟਾ TF ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ? T0F ਮਾਈਨਸ TF, KF ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੋਲੈਲਿਟੀ, ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਵੋਲੀਅਮ। ਵੋਲੀਅਮ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ml ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੀਟਰ ਬਣਾ ਦੇਈਦਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ? ਆਪਾਂ 1000 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਤਾ। ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮ, ਜੇ ਉੱਪਰ 1000 ਲਾਉਣਾ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ। T0F, T0 ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ। ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ? 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? -34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। -34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। KF ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, KF ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਦਾ 1.86। ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। KF ਫॉर ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1.86। NB ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ WB ਅਪੋਨ MB। WB ਅਪੋਨ MB। ਆਪਾਂ ਆ ਮਾਸ ਲੱਭਣ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। WB ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ, ਇਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 2 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਕ ਦਾ 12 ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 24 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 2 4 ਤੇ 2 6 ਗ੍ਰਾਮ। ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 32 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 30 ਤੇ 62 ਗ੍ਰਾਮ। 62 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? MB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 62 ਗ੍ਰਾਮ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? 50 ਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਤਾ? 1000। ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਮਾਈਨਸ 0 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 34 51 ਜਾ 50 20 ਜਾ ਤੇ 210 ਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟੀ, ਇੱਥੇ 20 ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖਿਓ 62 1 ਜਾ 62 3 ਜਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.03 ਇੰਟੂ WB ਇੰਟੂ 20। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ? 100 ਆ ਗਿਆ। 21 ਜਾ ਤੇ 20 ਕਿੰਨੇ ਜਾ? 5 ਜਾ। 5 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ, 34 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨੂੰ? 5 ਨੂੰ। ਤੇ 3 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਤਾ? ਡਿਵਾਈਡ, ਤੇ ਇਹ WB ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 5 4 ਜਾ 20, 0 ਇੱਥੇ 2 ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ, 5 3 ਜਾ 15 ਤੇ 170/3 ਆ ਗਿਆ। 5 4 ਜਾਂ 20 ਤੇ ਇਹਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੀਏ क्योंकि ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਇਹੋ ਕੱਢਣਾ ਨਾ। WB ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਇਹ WB ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਫਰੋਮ 1 ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ? ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 170/3 ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾਲ 50 ਆ ਚੀਜ਼ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। 17/15 1.13 ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक नोट करो फिर दूजा कराना। देखियो थर्ड न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल विच उन्होंने क्या वा, एक तो क्या जी केन शूगर के बारे गल की गई, एक गल की गई आ ग्लूकोज के बारे। पहलों आप देखते हैं केन शूगर ली, फॉर केन शूगर फ्रीजिंग पॉइंट दिता वा 271, फ्रीजिंग पॉइंट वाली डेल्टा TF वाली प्रॉपर्टी लाने, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF ते M। KF ते M इनू किद्दां तोड़ीदा? T0F माइनस TF KF M नू किद्दां लिखीदा? ये हुंदा वा नंबर ऑफ मोल मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, उपर की ला देना 1000। तो एक नाल ही आप ग्लूकोज बारे भी लिखिए, फॉर ग्लूकोज लिए आप फिर इदा ही सब कुछ लिखिया। देखते लभण की आए आप डेल्टा TF KF ते M। डेल्टा TF नू इदा तोड़ के लिखिया T0F TF KF M की जगह ते गिवन नंबर ऑफ मोल मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ते उपर की ला देना 1000। T0F TF KF उस तरह NB नू गिवन मास बाय मोलर मास नाल केड़ी चीज़ है WA इन ग्राम ते की ला देना 1000। आपां की लभण आए आ फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज का। आ ते फ्रीजिंग पॉइंट है जे प्योर सल्यूशन का, प्योर सॉल्वेंट का। आ चीज़ जे सल्यूशन का जिस 5% ग्लूकोज है, आप TF इधर वाला लभण आए हैं। क्लीयर हुंदा? ठीक है। T0F 5% केन शूगर का मतलब की हुंदा वा? 5% केन शूगर का मतलब की है 5 ग्राम केन शूगर 100 ml सल्यूशन च। इत्थे मैं लिख दिना वा, इत्थे की लिखिया सानू गिवन की हैगा वा, गिवन हैगा वा 5% केन शूगर। 5% केन शूगर हुंदी आ सुक्रोज C12H22O11। आ केन शूगर का फार्मूला जी। ते नाल लिखिया ना बाईमास, बाईमास का मतलब 5 ग्राम केन शूगर इन 100 ml सल्यूशन। 100 ग्राम बाईमास है ना, दोनों मास विच 100 ग्राम सल्यूशन। 5 ग्राम सल्यूट 100 ग्राम सल्यूशन च। ठीक है। दूजे बन्ने की लिखिया 5% ग्लूकोज। ये भी देखियो गिवन की हैगा वा 5% ग्लूकोज बाय मास। आपां की कहना 5 ग्राम ग्लूकोज हैगा वा 100 ग्राम सल्यूशन दे विच। 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सल्यूशन। इत्थे आ जाओ हुण T0F प्योर सॉल्वेंट हैगा पानी। ये किन्ने डिग्री ते जम जाता? 0 डिग्री ते। T0F की जगह ते किन्ना भर देंगे आप? 0 डिग्री सैल्सीयस। फिर माइनस TF, TF किन्ना दिता?
271 ਕੈਲਵਿਨ। ਜੇ ਆ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਬਦਲੀਏ। 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 273.16 ਕੈਲਵਿਨ। 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 273.16 ਕੈਲਵਿਨ ਮਾਈਨਸ TF ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 271 ਕੈਲਵਿਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ KF। ਵਾਟਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ KF ਤੇ KF ਵੇਖਿਓ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। KF ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ KF। NB ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ WB/MB। ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਾ ਦੇਖੋ 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ WB ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ। MB ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ 12 ਨੂੰ ਕੀਤਾ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ 22 ਨੂੰ ਕੀਤਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ 11 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ 16 ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਊਗਾ 12 12 ਜਾਂ 144, 22 1 ਜਾਂ 22 ਤੇ 11 16 ਜਾਂ 176। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ 6 ਤੇ 6 2 8 ਤੇ 4 12, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ 7 8 9 10 4 14, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ 1 2 ਤੇ 3 342। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਕਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਿਓ 342 ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਰਵੇ। 342 ਭਰਤਾ। WA ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਲਿਊਟ ਹੈਗਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ 95 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੋਂ। ਸਲਿਊਟ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 5 ਚ 95 ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਹੀ 100 ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ 95 ਗ੍ਰਾਮ। ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ 1000। ਕੋਈ ਹਜੇ ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ T0F ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਸੇਮ 273.16 ਕੈਲਵਿਨ। TF ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ, KF ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। WB 5 ਗ੍ਰਾਮ। MB ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ 180 ਹੁੰਦਾ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ C6H12O6 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋਗੇ ਤੇ 180 ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ 180 ਭਰਤਾ। ਫਿਰ WA 95 ਹੀ ਹੋਣਾ, 5 ਇਹ ਵਾ 95 ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ 100 ਬਣਿਆ 95। ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ 1000। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ 1 ਜੇ, ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ 2 ਜੇ। ਦੇਖਿਓ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। देखियो आप डिवाइड कराइए दोनों नू, डिवाइड कराया सैकेंड उपर रखांगे 1 हेठा रखांगे। सैकेंड की आ सारी इधरली टर्म तारीए 273.16 माइनस TF ते डिवाइड किन्ना कराता 273 चो इनू माइनस किया किन्ना क रह जूगा, रह जाना वा 2.16। जिदा आ वेखो 1 चो 3 गया 2 आ जाना 2.16। 2.16 किहदे इक्वल आ गया, पहलों आ पूरी टर्म लिखिए कि आ जाना KF इंटू 5/180 इंटू 1000/95। हेठा किन्ना आऊगा आ पूरी टर्म की आ जाना KF 5/342 1000/95। मैं ता कहन डा भी इत्थे कैंसलेशन ना करो, वेखो कैंसल हो गई। KF ना KF कैंसल हो गया, 5 ना 5 कैंसल हो गया। भी इत्थे टाइम वेस्ट ना करो, अपना इधर कट्टी जाने आपे। की रह गया साडे कोल 342 सब तो हेठ वाला उपर चल जूगा, 180 हेठा आ जूगा। आ चीज़ हेठा आ गई, आ उपर चल गया। तो इत्थे की हैगा वा 273.16 माइनस TF 2.16।
180 ਦਾ ਇਹ ਡਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2 9 ਜਾ 2 1 ਜਾ 2 7 ਜਾ 14 2 1 ਜਾ 2। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ 273.16 ਮਾਈਨਸ TF 171 ਦੇ ਹੇਠਾਂ 90 ਤੇ 2.16 90 ਤੇ 216 ਇਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 9 2 ਜਾਂ 18 ਤੇ 36 ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਇਆ 100 9 10 ਜਾਂ 90 9 2 ਜਾਂ 18 9 4 ਜਾਂ 36 4 6 ਜਾਂ 24 4 25 ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ 24 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 24 ਰਹਿ ਗਿਆ। 273.16 ਮਾਈਨਸ TF ਹੇਠਾਂ 1000 ਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਈਏ ਤੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦੇਣਾ 171 ਨੂੰ ਤੇ 24 ਨੂੰ। ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ 4.104 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆ TF ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ 273.16 ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਤਾ 4.104 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਲਾਸਟ ਤੇ 269 ਆ ਜਾਣਾ 269.06 ਕੈਲਵਿਨ। ठीक है कर लो नोट। लास्ट कोलीगेटिव प्रॉपर्टी आ गई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर स्टेटमेंट ते दी सौखी आ भी एक्सटर्नल प्रैशर अप्लाई करीदा तो चीज़ां स्टॉप हो जांदियां, पर उत्थों तक पहुँचते पहलों आपां छोटियां छोटियां टर्म्स देखते हैं। डिफ्यूज़न की हुंदा पहलों देखिए। ठीक है, समझण वालियां चीज़ां देखियो ध्यान नाल। आ एक साडे कोल कंटेनर है, कंटेनर इनू आपां दो पार्ट में डिवाइड करता, विचकार एक जाली जी ला दिन्ने आपां। ठीक है, कोई फिल्टर जिहा जाली जी लाती, इनू आपां कहता मैंबरीन। मैंबरीन लाती आपां मिडल दे विच। इनू पूरा वधिया समझियो। हुण ये जिहड़ा भी इत्थे कोई चीज़ आ, एक बन्ने कंसनट्रेशन हैगी C1, एक बन्ने कंसनट्रेशन हैगी C2। कंसनट्रेशन इहदा मतलब कि एक बन्ने C1 एक बन्ने C2 हो सकता। जिहड़ा इधरले बन्ने सल्यूशन होवे, इधरले बन्ने जिहड़ा सल्यूशन होवे उहदे विच शूगर की मात्रा ज़्यादा होवे ते पानी घट होवे। आ जिहड़े मैं गोल गोल जे बनाउणा पिया ये शूगर दे मॉलीक्यूल आ, जां कह लो ये वाटर दे मॉलीक्यूल है, तो बाकी बची शूगर आ। हाई कंसनट्रेशन का मतलब हुंदा वा जिद्दां मैं कहा C1 ज़्यादा C2 दे नालों। C1 का मतलब हैगा कंसनट्रेशन, C का मतलब कंसनट्रेशन। जे मैं क्या भी कंसनट्रेशन पहले दी ज़्यादा दूजे दी घट आ। घट आ, घट का मतलब की आ, इनू देखते की लैट करना। जिद्दां आ जिहड़े गोल गोल जे आ ये हैगे जे नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल जिहदे विच गोल गोल जे ज़्यादा, सल्यूट ज़्यादा, कंसनट्रेशन ज़्यादा। जां सीधा पंजाबी विच तुहानूं मैं दस दिंदा, जिद्दां वेखो दो गिलास आ, दो गिलास आ, एक गिलास दे विच शूगर ही शूगर आ, किन्नी खंड पाई आ ते थोड़ा क पानी आ सिर्फ। इनू आपां कहांगे कंसनट्रेटेड सल्यूशन।
कंसनट्रेटिड सल्यूशन ते दूजे गिलास दे विच पानी पानी आ सिर्फ ते थोड़ी क शूगर पाई सिर्फ इनू कवांगे आपां डिल्यूट सल्यूशन। हुण थोड़ा क मीनिंग क्लीयर होया। एक बन्ने शूगर ज़्यादा एक बन्ने शूगर की आ घट होना की आ इधर पानी ज़्यादा ना पानी दे मॉलीक्यूल ने इधर आउण दी कोशिश करनी इधर आउण दी कोशिश की ते शूगर ज़्यादा जिधर उन्हें घट वल जाण दी कोशिश की। सॉल्वेंट जिहड़ा वा ज़्यादा तो किधर जाऊगा घट वल ते सल्यूट जिहड़ा वा वो ज़्यादा तो किधर जाऊगा घट वल। फिर समझाना डिफ्यूजन का मतलब हुंदा वा नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ਜਾਂ any substance from high concentration to low concentration एक बार फिर इनू समझ लियो आ चीज़ इत्थे की बनाई आ। डिफ्यूजन का आ मतलब हुंदा जे नैट मूवमेंट होनी किसी भी चीज़ की। डिफ्यूजन का मतलब की आ नैट मूवमेंट होनी किसी भी चीज़ की हाई कंसनट्रेशन तो लो कंसनट्रेशन वाल। जिस तरह कंटेनर एक बन्ने जिद्दां कह लो भी पानी घट आ वाटर घट आ ते शूगर की आ ज़्यादा। ठीक है मैं शूगर की एग्जाम्पल लेना पिया। एक बन्ने की आ पानी ज़्यादा वा ते शूगर की आ घट ते वाटर नू आपां की कहना सॉल्वेंट। वाटर की हैगा वा सॉल्वेंट ते शूगर की हैगी आ सल्यूट। हुण जिथे पानी ज़्यादा वा ना पानी ज़्यादा ने किधर जाना वा जिधर पानी घट आ। जिथे शूगर ज़्यादा वा शूगर ज़्यादा ने किधर जाना जिधर शूगर घट आ। ज़्यादा ने किधर जाना घट वाल ज़्यादा ने किधर जाना घट वाल। आ वेखो आपां क्या ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन तो किधर जानी चीज़ लो कंसनट्रेशन आ इनू कहीदा डिफ्यूजन हुंदा क्लीयर। ठीक है भावें वो सॉल्वेंट आ सॉल्वेंट भी तुरदा पिया भावें वो सल्यूट आ सल्यूट भी तुरदा पिया किहदे विच्चों पास हुंदे पे आ मैंब्रेन दे विच्चों इनू आपां कहीदा डिफ्यूजन। हुण उस तो बाद आ गया जेकर ऑसमोसिस की हुंदा। ऑसमोसिस की हुंदा हुण आपां सेम ओहो कंटेनर ही अगे आपां की लाई ही सिंपल मैंब्रेन हुण आपां ला दांगे सैमी परमीएबल मैंब्रेन। सैमी परमीएबल मैंब्रेन जेड़ी एदे जेड़े सुराख आ ये बड़े मन्यूट हुंदे छोटे हुंदे एदे विच्चों सॉल्वेंट ते पास कर जांदा सॉल्वेंट जिहड़ा वा वो ते पास कर गया पर जिहड़ा सल्यूट ही जिद्दां शूगर दे मॉलीक्यूल भी उधर जांदे पए ही सल्यूट जिहड़ा वा इहदे च अड़ जांदा रुक जांदा सल्यूट पास नहीं करदा। ठीक है कि कारण की आ सल्यूट जिहड़ा हुंदा सल्यूट हैव बिगर साइज particles do not pass through semi permeable membrane। फिर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बनूंगी ऑस्मोसिस की आ गया आपां कवांगे मूवमेंट ऑफ सल्यूट नहीं ना गया कला आ नहीं जाता कौन जाता सॉल्वेंट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम किधरों किधर जाना हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन फ्रॉम हाई कंसनट्रेटेड सॉल्वेंट टू लो कंसनट्रेटेड सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
लास्ट ते फिर एक बार पूरा देख लियो, फिर यदी डेफिनेशन लिखाना ऑस्मोटिक प्रैशर दी। जिद्दां देखो कंटेनर आ, कंटेनर दे पूरा मिड दे विच एक जाली जी लाई जिन्हों आपां कवांगे मैंबरीन। मैंबरीन इस जाली दे विच इहदा छोटे छोटे सुराख जे होणगे, ठीक है, इनू कह देंगे आपां मैंबरीन। सेम इदां दा एक होर कंटेनर आ, होर कंटेनर आ, इहदे विच भी एक जाली जी लाई पर उहदे जिहड़े सुराख आ बड़े छोटे ने, ठीक है, इहदे मुकाबले बड़े छोटे होणगे ते इनू आपां कवांगे जिहदे विच टिनी पोर्स हुंदे ने, छोटे छोटे सुराख हुंदे, सैमी परमीएबल मैंबरीन। मैंबरीन दोनों च देखियो फर्क की पैना। इत्थे देखो इत्थे भी सल्यूशन आ, इत्थे भी सल्यूशन आ ते इधर भी की आ सल्यूशन। ते सल्यूशन किन्नियां चीज़ां दा बनदा? दो चीज़ां दा, एक हुंदा सल्यूट, एक हुंदा सॉल्वेंट। एक हुंदा सल्यूट ते दूजी चीज़ की हुंदी आ सॉल्वेंट। इह सल्यूट भी हैगा ते सॉल्वेंट भी हैगा, इधर भी सल्यूट भी हैगा ते सॉल्वेंट भी हैगा। जिद्दां सल्यूशन किद्दां बनिया, आ गिलास आ, इहदे च पानी आ ते इहदे च तुसीं शूगर दे क्यूब पाते, जिद्दां खंड दे दाने जे पाते ते इह की बन गया सल्यूशन। जिहदे विच वाटर की हैगा ही सल्यूट सॉल्वेंट ते आ जिहड़े शूगर दे क्रिस्टल आ बॉक्स जिहड़े मैं बनाए आ, इह की हैगे आ सल्यूट। इन्ना क्लीयर हुंदा, ठीक है ना। जे ते हैगी आ मैंबरीन, इन्हां आ दोने सल्यूशन एक दूजे तो वक्रे किद्दां? एक नूं मैं कहण दिया हाई कंसनट्रेटिड सल्यूशन, एक नूं मैं कहना पिया वां लो कंसनट्रेटिड सल्यूशन। लो कंसनट्रेटिड सल्यूशन, हाई कंसनट्रेटिड का मतलब सल्यूट की होना ज़्यादा, सल्यूट ज़्यादा होगा जिन्हों आपां कह दईए ज़्यादा मात्रा विच हाई लिख देना, ते सॉल्वेंट की होगा घट, लो होगा। लो कंसनट्रेशन का मतलब हैगा सॉल्वेंट की होना ज़्यादा ते सल्यूट की होना वा घट। इन्ना क्लीयर हुंदा। जे ते हैगी मैंबरीन, इहदे च वड्डे वड्डे सुराख आ, सॉल्वेंट जिहड़ा हाई वाला किधर जाऊगा? लो वाल, इस सुराख थानी पास हो गया। सॉल्वेंट जिहड़ा सॉल्वेंट किधरों किधर गया? हाई टू लो, हाई टू किधर गया? लो, इधर नूं एरो पाता। ते सल्यूट इधर हाई आ, इधरों इधर नूं गया। सल्यूट हाई तो लो वाल गया, सल्यूट भी किधर गया? हाई तो लैके लो वाल। इनू कहीदा जे जदों इदां दी चीज़ होवे, सॉल्वेंट भी तुर पे सल्यूट भी तुर पे, ओनू की बोली दा डिफ्यूजन, ओनू आपां की बोली दा डिफ्यूजन। क्लीयर हुंदा। इधर आ जाओ, सेम वो चीज़ां सल्यूशन हुण समझ लियो ध्यान ना, इधर भी की आ सल्यूशन। सल्यूशन नूं किन्ने किन्ने बनाया? सॉल्वेंट ने ते सल्यूट ने। सल्यूशन नूं किन्ने किन्ने बनाया? सॉल्वेंट ने ते सल्यूट ने। इनू मैं कह दिना हाई कंसनट्रेटिड। हाई कंसनट्रेटिड का मतलब सल्यूट ज़्यादा, आ चीज़ जे हाई ते सॉल्वेंट की आ घट, आ चीज़ जे लो। इनू मैं कह दिना लो कंसनट्रेटिड सल्यूशन। एदा मतलब है सॉल्वेंट की हैगा वा ज़्यादा ते सल्यूट की हैगा वा घट। पर होना की आ, इत्थे सुराख वड्डे ही ना, ते आ जिद्दां मान लो वड्डा सारा शूगर का क्रिस्टल भी पास हो गया। हुण इत्थे बड़े टिनी पोर्स आ, छोटे छोटे सुराख आ, सॉल्वेंट जिहड़ा ए ते पास कर गया, हाई तो किधर गया? लो वाल। पर सल्यूट हाई तो लो वाल जान लगा, इत्थे ब्लॉक हो गया, जाया ही नहीं गया। देखो ये चीज़ पास नहीं की। फिर आपां क्या? ओनली सॉल्वेंट फ्लो करदा किधरों? हाई कंसनट्रेटिड टू लो वाल, हाई टू लो वाल। इनू आपां की बोली दा वा ऑसमोसिस, इनू आपां की बोली दा वा ऑसमोसिस। ठीक, क्लीयर हो जाता। हुण पता लग गया डिफ्यूजन ते ऑसमोसिस की हुंदा।
एक मैं तुहानू रिवर्स ऑसमोसिस भी अज दस दिना, नैक्सट डे ऑसमोटिक प्रैशर पढ़ांगे। रिवर्स ऑसमोसिस हुंदा जे तो पुट्ठा भी सॉल्वेंट ने किधरों जाना लो टू हाई, जिदा ये आपां की पढ़िया ऑसमोसिस। रिवर्स ऑसमोसिस जिहड़े घरां दे विच फिल्टर लगे आ उहदे विच ये प्रोसैस हुंदा पुट्ठा हुंदा वा, सॉल्वेंट नूं इधरों धक्का मार के इधर भेजीदा। ठीक है, वो नोट के अंडर बाद च देख लांगे, फिलहाल ये भी चीज़ां तुसीं नोट कर लियो, इत्थों तक ही रखिए नोट।